we'll have a very quick look at the questions which are likely to be cancelled from the prelims 2025 paper, very much in line with the 3 questions that were cancelled from the prelims 2024 paper, quite unexpectedly. Guys, कौन से क्वेश्चन थे वो जो 2024 के पेपर में से कैंसिल हुए थे? These were those 3 questions. सबसे पहले there was a translation error. Statement 1 stated something. It stated that the risk gets divided. एंड हिंदी में उसका उल्टा ही मतलब आ रहा था कि रिस्क बढ़ जाता है, जोखिम बढ़ जाता है. सो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था. सिमिलरली देयर वाज दिस स्ट्रक्चरल एरर इन वन ऑफ द क्वेश्चंस. बात और हो रही है कॉर्नवालिस की और स्टेटमेंट है रैयतवारी के ऊपर. सो prima facie apparently there was no reason to cancel this question, लेकिन due to this structural error this question has been cancelled. This can be our best guess, otherwise कोई दूसरी वजह तो यहां पर दिखती नहीं है. Third question that was cancelled was this question on Indian flying fox. Now here there appears to be a temporal error. This question becomes invalid because this was a thing of past. वॉमिन वाली कैटेगरी जो है पहले एग्जिस्ट करती थी 2022 के अमेंडमेंट के बाद. दिस कैटेगरी was removed. So अगर यहाँ पर is placed के जगह पर was placed भी आ जाता तब भी चांस होता इस क्वेश्चन के वैलिड होने का. यहाँ पर both the statements are incorrect वाला ऑप्शन ही नहीं था, उस वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया. सो अगेन क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, हम किसी को लगा नहीं था कि 3 क्वेश्चंस कैंसिल होंगे, बट हुए थे. और क्यों हुए थे उस पर भी सबने ध्यान दिया है. नाउ गाइस, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स 2024 which have this issue, जहां पर some type of error is visible. Either it's a translation error or it is a structural error and so on. Let's try to understand this. And the reason behind we are understanding this and we are discussing this is that even if you are getting wrong answer to this question or right answer to this question, you should not be worrying about this question. And on a conservative note, what you can do, you can remove these 4 questions that we are discussing from your computation of marks. That will give you the most conservative estimate of marks. ठीक है? So in accordance to that conservative estimate, if you are getting comfortable marks, then definitely you will be writing mains. ठीक है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. यहाँ पर हिमांशु इस क्वेश्चन को पढ़ लो. India is one of the founding members of the International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect A. India to Central Asia to Europe via Iran, B. India to Central Asia via China, C. India to South Asia through Bangladesh and Myanmar, D. India to Europe through Azerbaijan. Fine, guys. Before coming to the answer, let me also remind you that we had shared a petition with you guys. We'll be sharing it on YouTube. We'll be sharing it with YouTube Janta as well and with you as well, where we have requested UPSC to award +2 marks to any question that gets cancelled in the prelims 2025 paper. जिस भी बच्चे ने वो अटेम्प्ट किया है और वो कैंसिल हो जाता है, irrespective of him or her getting it right or wrong. ठीक है? So I would expect all of you guys to sign it as well. आपके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है गाइस, डेल्टा कुछ लोगों ने मार्क किया है, कुछ लोगों ने अल्फा मार्क किया है. बोथ द ऑप्शंस आर इक्वली प्लॉजिबल. अगर आप इंस्टक के बारे में बात करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये काफी इंटेंसिवली हमने डिस्कस किया था हमारे क्लासेस में, पीआईबी माइक्रोथीमेटिक क्लासेस में, न्यूक्लियर नोट्स में था ये, राइट? नाउ गाइस, दिस इज द मैप दैट वी हैड डिस्कस्ड. ठीक है, ये लाल कलर की जो लाइन आपको दिख रही है. अब यहां पर स्टेटमेंट 1 को आप देखो, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान. नाउ ठीक है, इंडिया से ईरान तो आप जाते ही हो. कौन से पोर्ट के थ्रू जाते हो? बंदर अब्बास पोर्ट हमने डिस्कस किया था. ठीक है, चाबार इट्स प्रपोज्ड टू इंक्लूड, लेकिन फिलहाल व्हाट इज ऑनलाइन इज बंदर अब्बास. यहां से वी गो टू कैस्पियन सी. यहां तक तो सब ठीक है. नाउ डिटोर्स टेक प्लेस फ्रॉम द कैस्पियन सी. Either you can go to Kazakhstan or you can go to Azerbaijan, Baku, or you can go to Astrakhan which is in Russia. ठीक है, कैस्पियन सी से सारे डिटोर हो रहे हैं. अब अगर हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान. वाया ईरान तो डेफिनेटली हो रहा है. अब सेंट्रल एशिया हम जा रहे हैं क्या? यस, कैस्पियन सी से होते हुए अगर हम कजाकिस्तान
वाले पोर्ट पर पहले जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं रशिया, देन ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट। बट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये भी उतना ही करेक्ट है। इंडिया से हम अगेन कैस्पियन सी के रूट से या फिर लैंड रूट से भी होते हुए अजरबैजान जा सकते हैं, एंड देन वी गो टू रशिया, यूरोप। So both options are equally plausible, and that is the reason this question is liable to be cancelled. Definitely cancel होगा नहीं बोल सकते, लेकिन लेकिन अगर कैंसिल होता है तो हमने यही रिक्वेस्ट की है यूपीएससी को कि +2 मार्क्स सबको मिले जिन्होंने भी ये अटेम्प्ट किया है। मेक सेंस हिमांशु? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी इज दिस वन। इसको पढ़ लो स्वाति। Consider the following countries: United Kingdom, Denmark, New Zealand, Australia, Brazil. How many of the above countries have more than 4 time zones? Option A, all the 5. Option B, only 4. Option C, only 3. Option D, only 2. Okay. So what have you marked here, Swati? The C. You have marked sigma. ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी जिन्होंने डेल्टा मार्क किया है, कोई है यहाँ पे? हिमांशु, सत्यम, No, sir. सिग्मा मार्क किया है हिमांशु? Yes, sir. तो गाइस कई सारे आंसर कीज और कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो ओनली 4 बोल रहे हैं, कई सारे ऐसे भी हैं इंक्लूडिंग अस जो ओनली 3 बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देर इज नो डाउट अबाउट यूनाइटेड किंगडम, देर इज नो डाउट अबाउट डेनमार्क, नो डाउट अबाउट ब्राजील, नो डाउट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन न्यूजीलैंड को लेकर काफी डाउट है, वेगनेस है। विल अंडरस्टैंड व्हाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। ठीक है, नाउ इफ यू लुक at the official stance of New Zealand government, they say that the Time Act 1974 defines New Zealand Standard Time and the time in the Chatham Islands. दो ही ऑफिशियल टाइम जोन्स हैं न्यूजीलैंड के, बट इफ यू लुक जोग्राफिकली, मेनी सोर्सेस ऑन द इंटरनेट ऑल्सो क्लेम टू हैव 5, न्यूजीलैंड टू हैव 5 टाइम जोन्स। ठीक है, दे इंक्लूड कुक आइलैंड, न्यू, राइट। सो जोग्राफिकली आप एक्सटेंड देखोगे और डिपेंडेंट टेरिटरीज को इसमें इंक्लूड करोगे, इट विल इंक्रीज। लेकिन ऑफिशियल डेफिनेशन के अनुसार देखोगे तो न्यूजीलैंड डजंट हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, ऑफिशियली इट हैज ओनली 2 टाइम जोन्स। सो यहां पर यूपीएससी एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रही है, ऑफिशियल डेफिनेशन से आप जाओगे तो आपको ओनली 3 मिलेगा, जोग्राफिकल एक्सटेंट के अनुसार आप जाओगे तो आपको ओनली 4 मिलेगा, राइट। According to us, we are following the official stance of the government. ठीक है, when they say that they have only 2 time zones, we are sticking to it and we are giving only 3 as the correct answer. अगर only 3 इसका सही आंसर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कैंसिल होता है, ठीक है, अगेन we have made that petition for +2 marks. Again, moving ahead, clarity है स्वाति Yes, इस sir. क्वेश्चन में? Okay. Now the third question, the third disputable question, the third question that might be cancelled is this. Poonam, pad do please. Question number 64. The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflects the implications of the above said report? First, Peninsula India will most likely suffer from flooding and tropical cyclone and droughts. Second, the survival of animals, including human, will be affected as seeding of their body heat through perishaments becomes difficult. Fine. Before answering this, I would just ask Ajit sir to check the comments of students in the comment section, because I won't be able to cater to those while I'm speaking. So guys, यहाँ पर भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने आंसर दिया है सिग्मा, बोथ 1 and 2, कई सारों ने दिया है बीटा, दैट इज 2 ओनली। तुमने क्या मार्क किया हिमांशु? Beta, sir. बीटा। तो वी हैव आल्सो स्टक टू सर मैंने भी बीटा ही माना है। हाँ 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 हाँ, हमने भी बीटा ही मारा है। सो गाइज यहां पर इफ यू गो विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ wet bulb temperature and what does it denote, what does it connote, what does it imply,
ठीक है. In this context, it implies the inability of human body or other animals to cool themselves through perspiration when the wet bulb temperature goes beyond a point, in this case 35 degrees Celsius, right? So statement 2 is definitely correct, and it is also mentioned in this particular report. ठीक है, this is that report. Now statement 1 की अगर बात करें, it says peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. Now statement 1 is totally incoherent and incompatible with statement 2. Statement 2 talks about a completely different phenomenon, right? Wet bulb temperature कुछ और बात है, ठीक है, that's a different concept altogether. And statement 1 तो flood की बात कर रहा है, tropical cyclone, droughts, which has no correlation with this phenomenon. That is one approach, and that we have followed. So we have given beta 2 only as the correct answer. But if you go back and look at the question again, क्या बोलता है question? The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius, which is correct. यहां पर क्वेश्चन ने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है. उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है which of the following statements best reflects the implication of the above said report. ठीक है, above said fact नहीं बोला जा रहा है, above said report. अब आप रिपोर्ट खोल कर देखोगे तो उस रिपोर्ट में साइक्लोन्स की भी बात हुई है, ड्रॉट्स की भी बात हुई है, फ्लड्स की भी बात हुई है. गाइस, दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ऑन रैयतवारी दैट वाज आस्क्ड. कॉर्नवालिस की बात हो रही है, स्टेटमेंट है रैयतवारी के ऊपर, हो गया क्वेश्चन कैंसिल. यहां पर गाइस बात हो रही है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की, उसके अनुसार ये सही हो रहा है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट अगर वेट बल्ब टेम्परेचर का लोगे तो स्टेटमेंट 1 गलत होता है. तो वी हैव ट्राइड टू स्टिक टू द मोस्ट कोहेरेंट एंड कंपैटिबल ऑप्शन. और यहां पर सबसे रीजनेबल और कोहेरेंट ऑप्शन जो हमको लगता है, हमारी टीम को लगता है, दैट इज बी. बट अगेन बिकॉज दिस क्वेश्चन फॉल्स इन दैट ग्रे एरिया, अगेन वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस गेट्स कैंसल्ड बाय यूपीएससी व्हेन यू सी द ऑफिशियल आंसर की आफ्टर 1 year. 1 साल के बाद ही देख पाएंगे, राइट? सो दिस इज द थर्ड among the 4 possible questions likely to be cancelled. Make sense, Himanshu? यस सर, मगर ये जब न्यूज में आया था मैंने हिमांशु भी लाइक सर मेरे करेक्ट वाले सारे आप कैंसिल करवा रहे हो. यस सर, मगर मैं बोला मैंने शायद सर इसे बिहार या इस वाले एरिया में न्यूज में आते हुए सुना था वेट बल्ब टेम्परेचर को, तो मतलब उसके कारण कुछ लोग मर गए थे. तो वो ज्यादा तो नॉर्थ इंडिया का फिनोमिना होना चाहिए. That's the reason we are sticking to only 2. But we are not talking on the merit of the question. We are talking about the structure of the question, right? ठीक है, we are taking context of the previous paper. देखो guys, ये वो रिपोर्ट है, possible impact for India, extreme wet monsoon, कोलकाता एंड मुंबई. आप पेनिनसुला की बात कर रहे हो. पोटेंशियल इम्पैक्ट हॉटस्पॉट बोला जा रहा है इनको, पोटेंशियल इम्पैक्ट हॉटस्पॉट्स threatened by extreme river floods, more intense cyclones, rising sea levels, very high temperatures, ये सब बोला गया है. And that's why this becomes contentious. ठीक है, लास्ट वन गाइज, द लास्ट क्वेश्चन. अगेन इट्स देखने में थोड़ा सा वेक लग सकता है, लेकिन इफ यू हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बिफोर यू, जो ट्रांसलेशन एरर की वजह से कैंसिल हुआ है, रिस्क स्प्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, ट्रांसलेशन में बोल दिया कि बढ़ रहा है. ठीक है, उसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन नंबर 70 फिर से हिमांशु बोल रहा है सर ये भी मेरा सही हुआ है, आप गलत करवा रहे हो. नहीं सर, ये मेरा गलत हुआ है. गलत हुआ है, ठीक है, हिमांशु यहां पर फायदे में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ठीक है गाइज, यहां पर 2 चीजें मार्केट में, इसके 2 आंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक डेल्टा 1, 2 and 3 और एक सिग्मा 2 and 3. तो सबसे पहले तो इस बात पर क्लैरिटी लेते हैं, स्टेटमेंट 1 सही है या नहीं है. दिस इज स्टेटमेंट 1. यहां पर क्या बोला जा रहा है, द स्कीम एंटिसिपेट्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सोलर पीवी टेक्नीशियंस, 1 लाख. ठीक है, एंड दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्स. अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सॉरी नॉट स्टेटमेंट 1, यहां पर स्किलिंग की बात हो रही है. इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख skilled manpower through fresh skilling and upskilling under scheme component of capacity building. So more than 3 लाख नहीं होगा, 3 यहां पर एलिमिनेट होना चाहिए, आंसर 1 और 2 बचता है. ठीक है, यहां पर आई थिंक आजिज सर यहां पर बॉक्स गलती से डेल्टा पर बन गया है.
यू हैव टू चेक इट। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट 1 के ऊपर। स्टेटमेंट 3 वाला कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर हो गया। स्टेटमेंट 1, it targets installation of 1 crore solar rooftop panels in the residential sector. Guys, ऑफिशियली इसका टारगेट क्या है, एम क्या है? Here it says it's a bold vision to supply solar power. By March 2025, installations under the scheme are expected to exceed 10 lakh with numbers doubling 20 lakh by October 2025. यहां पर बोला जाता है ultimately reaching the target of 1 crore by March 2027. Targeting 1 crore solar installations by 2027. So guys, यहां पर टारगेट है कि 1 करोड़ घरों को जो है घरों पर ये इंस्टॉलेशंस करने हैं। ठीक है, जो कि हिंदी में बराबर से बोला भी गया है। हिंदी में क्या बोला जा रहा है? इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश स्टेटमेंट क्या बोलता है? It targets installation of 1 crore solar rooftop panels. Guys, 1 करोड़ घर है, 1 करोड़ पैनल नहीं है। It targets installation of 1 crore solar rooftop panels in the residential sector. अगर आप एक घर पर एक ही पैनल लगाने वाले हो, then this statement can stand correct. Again, that becomes a vague area. So 4 क्वेश्चन गाइज हमने देखे और उनके रीजंस भी देखे। दिस क्वेश्चन सेट ए के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 ऑन इंस्टक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका रीजन देखा। देन टाइम जोन्स वाला क्वेश्चन नंबर 76, रीजन देखा। ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स देखा हमने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का। उसके बाद क्वेश्चन 64 अगेन वेट बल्ब टेम्परेचर वाला, यहां पर हमने वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल सोर्स देखा। एंड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यहां पर हमने पीआईबी एंड अदर ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स देखा है। अब यहां पर गाइस एग्जाम तो हो गई है, पेपर तो हो गया है। व्हाट डज दिस एंटेल, व्हाट डज दिस मीन? 2024 में 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने कैंसिल किए और बच्चों को काफी हार्ट अटैक हुआ उसके बाद, क्योंकि जो बच्चों के सही आ रहे थे वो क्वेश्चन, वो मार्क कट हो गए और उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे मार्जिन से उनका प्रीलिम्स रह गया, राइट? सो दिस ईयर ऑल्सो अ सिमिलर ट्रेंड इज appears to be in the process. We can't claim कि definitely ऐसा ही होगा, ठीक है? Ultimately UPSC will decide what will happen. लेकिन so as to make sure that the same thing doesn't happen. Same thing मतलब क्वेश्चन कैंसिल हो रहे हैं और जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उनके मार्क कम हो रहे हैं। So as to ensure that this doesn't happen, we have created this petition. We'll be giving it up. We'll be handing it to UPSC, and we expect that if more and more people request and urge UPSC might want to give consideration to the genuine demands of the students. Let's be very realistic. Let's be very practical, guys. इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी जो बोलेंगे कि जो यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी, एवरी इंस्टीट्यूशन शुड बी क्रिटिसाइज्ड, बट दे वुड से कि दे वुड स्टार्ट डिमीनिंग यूपीएससी और बोलेंगे कि हम यूपीएससी को चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। गाइज, लेट्स नॉट फॉरगेट, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इससे पहले भी कोर्ट तक यूपीएससी गई है। यूपीएससी पुट्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस इन द कोर्ट्स एज वेल। अगर आंसर की चेंज करना है तो वो करने का अधिकार सिर्फ यूपीएससी के पास है, एंड द ओनली थिंग दैट इट कैन कंसिडर इज a request, a petition. So that's why we have taken this path and not the judicial path. We could also have gone through the judicial path, but that's a totally futile exercise. ठीक है, that's the proper way of looking at it. Now, और ये इसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपको भी मिलेगा, YouTube जनता को भी इसका लिंक मिल जाएगा।